أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آیت نمبر 159 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. 158 کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں. پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی یا نقصان سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. اور یہ جو صفا مروہ کی کہانی ہے، جو ایک مثال ہے اللہ کی آزمائش کی اور اس پر صبر کرنے کی. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے سیکھی کہ صبر کیا ہوتا ہے. صبر ہوتا ہے لگاتار کوشش کرتے رہنا، ہار نہیں ماننا، تھک کے کسی چیز کو چھوڑ نہیں دینا، کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، اور اللہ پر یقین کرنا، توکل کرنا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اور ایک یہ کہ کبھی بھی کوئی غلط کام یا غلط الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالنا جو اللہ کو ناراض کر دے. یہ ہوتا ہے صبر. اور پھر ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی نقصان ہو جائے تو اس وقت کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں آپ دیکھیں ایک عورت کا صبر اور اس کی کوشش. بار بار دوڑی، ان کی کوشش آسان نہیں تھی اور ان کا یقین بھی کم نہیں تھا. ہاجرہ علیہ السلام جو کچھ کر سکتی تھی کرتی رہیں، پھر اللہ کی مدد آئی. اگر اللہ چاہتا تو پہلے بھی پانی دے سکتا تھا. تو یہاں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ کی مدد بیٹھ کر رونے سے نہیں آتی بلکہ کوشش کرنے سے آتی ہے. ہماری زندگیوں میں بھی ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی طرف، کسی چیز کو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ہمارا مقصد ہوتا ہے جس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی چیز سے بچنے کے لیے بھی ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس سے بچ جائیں یا یہ مصیبت ہمارے سے ٹل جائے. ایسی سچویشنز میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور دو طرح کی بیہیویئرز ہوتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں ایسی سچویشن میں ہوں، میں یہاں پھنس گیا ہوں، میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میں بے بس ہوں، میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، بس اللہ ہے اور وہی میری مدد کرے گا، اور میں بس بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کروں، اور میں نے اتنی دعائیں کی پھر بھی یہ کیوں نہیں سالو ہو رہا، میں کیوں اس مصیبت میں ہمیشہ پھنسا رہتا ہوں، کیوں میری اللہ مدد نہیں کرتا، اور میں نے اتنی دعائیں کی میں کیوں فیل ہو جاتا ہوں، میں پاس کیوں نہیں ہو جاتا. اس وقت آپ کو صرف دعاؤں کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کو محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے. اگر آپ بار بار فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو پڑھائی بھی کرنی ہے، آپ کو ٹیوشنز لینی ہے، آپ کو اس کے دوسرے راستے ڈھونڈنے ہیں. اور کچھ لوگ دوسرے ایکسٹریم پر ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہے صرف میری ہی وجہ سے ہے، میری کوششوں اور میری محنت کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں، میری آج یہ عزت ہے کیونکہ میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں اور اتنا میں نے پڑھائی کی ہے، اور میری قابلیت کی وجہ سے میں آج اس پوزیشن پہ ہوں اس کمپنی میں. تو جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میں یہ کر لوں اور وہ کر لوں اور ایسے کوشش کر لوں اور اس سے مدد مانگ لوں اور یہ میری انٹیلیجنس یہاں پہ لگا لوں اور یہ چالاکی میں چلوں تو میری پریشانی حل ہو جائے گی. لیکن کام صرف آپ کی کوششوں سے بھی نہیں ہوگا. جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی، جب اللہ آپ کو محنت کرتے کوشش کرتے دیکھے گا اور اس کی رحمت ہوگی اور پھر آپ کو وہ اس کی مدد ہوگی، تب جا کے آپ کا کام بنے گا. دیکھیے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں کما پا رہی ہے، اتنے کامیاب نہیں ہیں. آپ دیکھیں پانی وہاں سے نہیں نکلا جہاں حضرت ہاجرہ کوشش کر رہی تھی، صفا اور مروہ کی پہاڑی سے نہیں ملا، بلکہ پانی بچے کے پاس سے نکلا. کئی بار ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کسی اور ڈائریکشن میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ریزلٹس اور اللہ کی عطا کسی اور جگہ سے ہو جاتی ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ بیکاری وہاں پر ہم نے محنت کی. نہیں، آپ کی محنت اور کوشش کو دیکھ کر ہی اللہ نے آپ کو وہ چیزیں عطا کی ہے، وہ نعمتیں عطا کی ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں جو خوشیاں اور کامیابیاں آتی ہیں وہ صرف ہماری کوششوں سے نہیں آتی بلکہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ کی رحمت سے عطا ہوتی ہے.
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ وہ ہے جو چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کر دے، اور چاہے تو تیز چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لے، اور چاہے تو ویران ریگستان جو تمہیں بھوکا پیاسا مار سکتا ہے اس میں سے حضرت ہاجرہ کے لیے پانی نکال دے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں اور کوشش کرتے رہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ شاکر ہے اور علیم ہے۔ شاکر یعنی وہ آپ کو آپ کی محنت کوشش کا بہت زیادہ اجر دینے والا ہے، ایک نیکی کا 7 گنا یا 700 گنا تک اجر دینے والا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیکی کو آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیں، جس طرح سے حضرت آجرہ کی اس نیکی کو آنے والی جنریشنز کے لیے عبادت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا پچھلی آیتوں میں کہ مدد مانگو اللہ سے صبر اور صلات کے ذریعے۔ تو جب آپ کسی پریشانی میں ہیں تو آپ نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں بھی پڑھیں، اور تہجد کی نمازیں پڑھیں، اور سجدوں میں دعائیں کریں، اور ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی آپ کی جو خواہشات ہیں اس کے لیے دعائیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں بھی بہت سی دعائیں ہیں ہر طرح کی ضرورت کے لیے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی ایسی دعائیں سکھائی ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو سجدوں میں ویسے تو قرآنی آیتیں پڑھنا منع ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصنون دعائیں سکھائی ہیں وہ ہم سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں سے یہ ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ جب بھی کبھی کوئی مصیبت آئے تو اس میں یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اللہ وہ ہے جو کبھی نہیں مرتا، جس کی زندگی قائم ہے اور جو باقی زندگیوں کا ذریعہ ہے۔ یا قیوم جو سب کچھ قائم کرنے والا ہے، جو ہر چیز کو سنبھالتا ہے، آسمان، زمین، انسان، ہر مخلوق کو، سب کچھ اس کے حکم پر چلتا ہے، ہر لمحہ اللہ کا نظام چل رہا ہے بنا کسی مدد کے۔ تو ان دونوں عظیم ناموں کا واسطہ دے کے اللہ کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری مدد مانگتے ہیں، برحمتک تیری رحمت کے ذریعے تو ہماری مدد کر، یعنی میں صرف تیری یعنی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ مصیبت کے وقت اللہ نے سکھایا ہمیں کہ ہمیں کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ ایک دعا ہے، یہ ایک مسنون دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو ہم مصیبت کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم تب پڑھ سکتے ہیں جب ہمارا دل بے چین ہو، جب ہماری زندگی میں کوئی مصیبت یا پریشانی آئے، یا ہمیں لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، دل میں اداسی ہو یا کمزوری محسوس ہو رہی ہو، تو تہجد کے وقت یا کسی بھی وقت میں ہم یہ دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایک اور مسنون دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی مصیبت، تکلیف یا غم کے وقت مانگنے کے لیے سکھائی ہے۔ دعا اس طرح ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے میری مصیبت، تکلیف، غم میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدلہ دے۔ کیا آپ کو پتا ہے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے سکھائی تھی؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ بہت غمزدہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے بدلے مجھے کچھ بہتر دے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کون ہو سکتا ہے ابو سلمہ سے بہتر، یعنی ان کے ہسبینڈ سے بہتر؟ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر عطا کیے۔ تو اس دعا کو مانگنے کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ تو یہ دعا سب سے زیادہ اس وقت مانگی جا سکتی ہے جب کسی کا نکاح نہ ہو رہا ہو، یا کوئی جوڑا نہ مل رہا ہو، یا رشتہ نہ ہو رہا ہو، یا کسی کی شادی میں کوئی مصیبتیں آ رہی ہو، یا یہ کہ کسی کا ڈیورس ہو گیا ہو اور اس کے لیے کوئی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہو۔
तो ये दुआ बेहतरीन दुआ है, खास करके इस हाजत के लिए, खास करके इस हाजत के लिए। आयत नंबर 159, इन्नल लदीना, बेशक वो लोग जो यक्तुमूना छुपाते हैं, यक्तुमूना प्लूरल है, कतमा, काफ तामीम इसका रूट है, कतमा कहते हैं उसने छुपाया, ही कंसील्ड, तो यक्तुमूना वो छुपाते हैं, माँ जो अनजलना नाजिल किया हमने, नून जा लाम इसका रूट है, नाजिल करना, टू रिवील, नाजिल हम उर्दू में भी कहते हैं, मिनल बय्यिनाती, वाज़े निशानियों में से, बय्यिनात क्लियर प्रूफ्स को कहते हैं, बय्यिना युबय्यिनु तबयीन, बा या नून इसका रूट है, वाज़े दलील को कहते हैं, वल हुदा और हिदायत में से, हा दाल या इसका रूट है, हुदा हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, हिदायत के लिए आया है। हुदा कहते हैं हिदायत को, गाइडेंस को, फायदेमंद इल्म को। मिम बादी, बाद उसके, माँ जो बय्यन्नाहु, वाज़े कर दिया हमने उसे, लिन्नासी लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, फिल किताबी किताब में। बय्यिनात बय्यिनतुन की जमा है, क्लियर प्रूव्स इसका माना है, वाज़े दलील यानी छुपी हुई सच्चाई को जाहिर करना। इस आयत को जब हम पढ़ते तो हमें लगता है कि फिर से बनी इसराइल की बात शुरू हो गई है, क्योंकि वो अपनी किताबों में लिखी सच्चाई और दलीलों को छुपाते थे ताकि लोगों को सच्चाई ना पता चले और वो मुसलमान ना बन जाए कहीं। तो कुछ मुफस्सिरीन का ये मानना है कि ये आयत दोबारा बनी इसराइल की ही बात कर रही है, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन का मानना ये है कि क्योंकि पिछली आयतों में अब मोमिनों की बात चल रही थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी मोमिनों की बात चालू हो गई थी, तो ये मोमिनों से ही कहा जा रहा है। आप देखें इससे पहले की आयतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मदद मांगो अल्लाह से सब्र और सलात के जरिए, और बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उसके बाद कुछ आजमाइशों का जिक्र किया कि बहुत सी आजमाइशें आएगी तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें आजमाया जाएगा खौफ के जरिए या भूख की के जरिए या मालों की कमी के जरिए, नफ्सों की कमी के जरिए, और उसमें तुम खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। उसके बाद सफा और मरवा का किस्सा आया, और अब अचानक ये आयत यहाँ कैसे आ गई। तो इस आयत के जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं कि हमारी आजमाइश होगी, जिन चीजों का जिक्र पहले हुआ उन चीजों से, और उसके अलावा एक बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान हमारा होगा हमारे दीन के और हमारे इल्म के जरिए भी। जब लोग तुम्हारे दीन को बुरा कहेंगे, जब कुरान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाई जाएगी, और जब उन पर झूठ गढ़ेंगे, जब मुसलमानों को बुरा कहा जाएगा, मोमिनों का मजाक बनाया जाएगा उनके ईमान की वजह से, तुम उस वक्त क्या करोगे? क्या तुम उनको खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिलाओगे? कुरान की, इस्लाम की उन बातों को छुपा दोगे इस डर से कि कहीं वो लोग मेरा मजाक ना बनाएं, या ये कि वो मुझे बैकवर्ड ना समझें? तो बेहतर है कि मैं बस उन बातों पर अग्री करूं जो सोशली और पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है, और बाकी बातों को छुपा लूं। कह दूं कि हाँ मुझे भी लगता है, मुझे भी थोड़ा डाउट है कुरान पर, और नहीं नहीं ये तो उस जमाने की बातें थी और कुरान तो आज की जिंदगी में अप्लाई नहीं होता। इस तरह से लोग कहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कुरान को और इस्लाम को सिर्फ इसलिए छुपाते हैं कि कहीं मेरा मजाक ना बने। जब बनी इसराइल ने अपनी किताबों की सच्चाई को छुपाया था तो अल्लाह ने उनके ऊपर बहुत नाराजगी जाहिर की थी, और यहाँ इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये किताब कोई भी हो सकती है, चाहे तौरात हो, चाहे इंजील हो, चाहे कुरान हो। इन किताबों में जो कुछ है वो सारे लोगों के लिए है, लिन नासी, हर एक के लिए है। तो ये बात बनी इसराइल से भी की जा सकती है, और क्योंकि यहाँ पे यक्तुमूना कहा है, यक्तुमूना का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट में बात हो रही है या फ्यूचर के लिए हो रही है, कि जो छुपाते हैं या जो छुपाएंगे, यानी ये मुसलमानों की बात हो रही है, तो ये हमसे भी कहा जा रहा है। अच्छा, इस आयत में यहाँ पर दो चीजों की बात हुई है।
किताब में अल्लाह ने दी है, पहली चीज़ वो है हिदायत, रोशन दलीलें, क्लियर प्रूफ्स, और दूसरा है गाइडेंस, हुदा। और ये दोनों लोगों तक आगे पहुँचाना ज़रूरी है, वरना बात नहीं बनेगी। अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम की तरफ आए और आप उसे सिर्फ गाइडेंस दें, आप उसे बताएं कि ये सूरह याद कर लो, ये कुरान की ये आयत याद कर लो, ये दुआ याद कर लो, इस तरह से नमाज पढ़ो, इस तरह से वजू करो, और ये हलाल है और ये हराम है, इससे रोका गया है, इसको करना चाहिए। तो सिर्फ ये बात बता देने से वो शख्स इस्लाम कबूल नहीं करेगा। जब तक उसे दलील नहीं मिलेगी, जब तक उसे क्लियर प्रूफ्स नहीं मिलेंगे, जब तक उसका दिल यकीन नहीं करेगा कि इस्लाम सच्चा दीन है और ये कुरान अल्लाह की किताब है और मुझे ये करने से के लिए क्यों कहा जा रहा है, जब तक इन बातों का उसे जवाब नहीं मिलेगा, वो इस्लाम कबूल नहीं करेगा। तो जब उन्हें बय्यिनात मिलेंगे, रोशन दलीलें मिलेंगी, तब उन्हें यकीन हो जाएगा कि ये सच्चा दीन है और फिर वो अल्लाह के हर हुक्म को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हिदायत के लिए ज़रूरी है कि बय्यिनात भी हो, और कुरान में ये दोनों चीज़ें मौजूद है, बस ज़रूरत ये है कि हम इसे पढ़ें, समझें, गौर-व-फ़िक्र करें, आगे लोगों को बताएँ। बय्यिनात और हुदा, ये दोनों चीज़ें नॉन मुस्लिम्स के लिए भी ज़रूरी है ताकि वो इस्लाम को कबूल करें, और बय्यिनात और हुदा मुस्लिम्स के लिए भी ज़रूरी है जानना, ताकि वो इस दीन पर जमे रहें। जैसे आजकल के मुस्लिम बच्चे, जो मुस्लिम फैमिली में पैदा होते हैं, जिनकी परवरिश एक मुस्लिम माहौल में होती है, उन्हें बताया जाता है कि देखो तुम नमाज़ पढ़ो, ये सूरह याद करो, ये कुरान को हिफ्ज़ कर लो, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है, इस तरह से पढ़ो ये वो। रोज़े रखो और ये हलाल है और ये हराम है, और वो जब तक छोटे होते हैं तब तक तो वो मान लेते हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं तो उनके दिल में सवाल आने लगता है कि हम ये सब कुछ क्यों करें? जब बच्चों का एक्सपोज़र बढ़ता है, टीचर्स से मिलते हैं, फ्रेंड्स, स्कूल, उसके अलावा टीवी और सोशल मीडिया, उसके ज़रिए उनके ज़हन में बहुत कुछ भरा जाता है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन उनके सामने आती है। दूसरों के तौर तरीके और बिलीव्स का पता चलता है। फिर वो सोचने लगते हैं कि क्यों? इस्लाम में ये क्यों कहा गया है कि ये करो और ये ना करो? सब लोग तो ऐसे करते हैं और मुझे ये सिखाया जाता है। मैं रोज़ा क्यों करूँ? मेरे रोज़े करने से अल्लाह को क्या मिलेगा? नमाज़ क्यों पढ़ूँ? तस्बीह क्यों करूँ? इससे अल्लाह का क्या फ़ायदा? अल्लाह मुझे ये करने पर ही क्यों यानी मेरी दुआएँ सुनता है? जब बच्चों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तो फिर वो इस्लाम को फ़ॉलो करना ही छोड़ देते हैं। ये बहुत कॉमन हो चुका है आज मुस्लिम उम्मा में, पूरी दुनिया में आज ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे डाउट करते हैं और उनके डाउट्स क्लियर नहीं किए जाते, इसके बाद वो इस्लाम को कबूल नहीं करते। तो लोगों को हिदायत के साथ-साथ बय्यिनात भी बताना बहुत ज़रूरी है। उनको इस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह है और अल्लाह ने रसूलों को भेजा है हमारी हिदायत के लिए, किताबें उतारी है हमारी हिदायत के लिए, और कुरान एक परफेक्ट किताब है, इसमें कोई गलती नहीं है और ये अल्लाह की किताब है। और इस यकीन पर उन्हें खुद पहुंचना है, यानी वो खुद कन्विंस होने चाहिए इस बात पर। ये नहीं कि क्योंकि मेरी माँ को यकीन है इसीलिए मैं फॉलो करता हूँ, ये अब नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। ये कभी किसी ज़माने में चला करता था, जब लोगों का इतना एक्सपोज़र नहीं हुआ करता था, जब जो उनके माँ-बाप बताते थे, वो उसे मान लिया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये नहीं चलेगा। ये कैसे होगा? जब इंसान कुरान को समझ कर पढ़ेगा। जितना ज़्यादा इंसान कुरान को पढ़ेगा, उसे समझेगा, उससे कन्विंस होता जाएगा और मान लेगा, ज़रूर उसे यकीन आ जाएगा कि ये अल्लाह की किताब है। और जितना ज़्यादा उसका उस पर यकीन बढ़ेगा, वो उतना ज़्यादा उसे फ़ॉलो भी करेगा। और जब वो उसको फ़ॉलो करेगा तो उसके फ़ायदे नज़र आने लगेंगे, उसके फ़ायदे वो महसूस करेगा, उसके दिल तक वो पहुँचेगी किताब, और उसका यकीन बढ़ेगा, और जब उसका यकीन बढ़ेगा तो वो ज़्यादा अमल करेगा, ज़्यादा ईमान उसका बढ़ेगा। यानी ये एक तरह का साइकिल है। अमल से ईमान बढ़ता है और ईमान से अमल बढ़ता है। और ऐसा दिल जो यकीन से भरा हुआ हो, वो औरों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब बात दिल से निकलती है तो आगे दिल तक पहुँचती है। दूसरों का भी ईमान इससे बढ़ता है। तो आपका बच्चा जब कन्विंस्ड होगा, उसे पक्का यकीन है कि ये अल्लाह की किताब है, तो फिर उसके ईमान को कोई डगमगा नहीं सकेगा। कोई सवाल उसके दिल में आएँगे या कोई और दूसरा उसके दिल में सवाल डाल नहीं सकेगा, बल्कि वो दूसरों की हिदायत का ज़रिया बनेगा। आज कुरान हर फ़ील्ड में, हर जगह पर डिस्कस किया जा रहा है। हर जगह इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अब देखें, पॉलिटिक्स में इसके ऊपर बात होती है, मीडिया में इसके ऊपर बात होती है, कुरान एक सब्जेक्ट की तरह बहुत सी जगहों पर पढ़ाया जाता है,
इसके लिटरेचर को पढ़ाया जाता है, लेकिन मुस्लिम उम्मा का ये हाल है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। जिनको बोलना चाहिए, जिनको सवालों के जवाब देने चाहिए, जिनको क्लैरिफाई करना चाहिए, वो चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये इल्म नहीं है। हम कैसे अपने आप को डिफेंड करें, हम कैसे कुरान को डिफेंड करें, हम कैसे बताएं कि क्या है सच, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। उलाइका, यही वो लोग हैं, यलअनुहुमुल्लाहु, लानत करता है उन पर अल्लाह, व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करते हैं उन पर लानत करने वाले, लाइनून। लाम आइन नून इसका रूट है, अल्लाह कर्सेस देम, अल्लाह की लानत है उन पर। लानत क्या होती है? लानत होती है अल्लाह के कुर्ब और उसकी रहमत से दूर होना। तो ऐसे लोग जो किताब के अंदर से दलीलें और हिदायत को छुपाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचाते, उनके ऊपर अल्लाह लानत करता है। और आप देखें कि लानत करते हैं लानत करने वाले, कौन है वो? अल्लाह ने कुछ ऐसे फरिश्तों को बनाया जिनका सिर्फ काम है लानत भेजना। अल्लाह ने ऐसे फरिश्तों को भी बनाया है जिनका सिर्फ काम है दुआएं करना। कुछ फरिश्तों का काम है लोगों की हिफाजत करना। यानी बहुत से कामों के लिए, अलग-अलग कामों के लिए अल्लाह ने फरिश्ते बनाए हैं, और उनमें से कुछ फरिश्तों को बनाया है जिनका काम है सिर्फ लानत करना। इससे पहले की आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि सब्र करने वालों पर अल्लाह की सलवात आती है, और यहाँ लानत की बात हो रही है। कितना सख्त हुक्म दिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ कहा जा रहा है यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनहुमुल लाइनून, और ये यलअनहुम का मतलब है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी हो रहा है, लानत की जा रही है और लानत आगे भी की जाएगी ऐसे लोगों पर जो अल्लाह की किताब में से हिदायत को और दलीलों को आगे नहीं पहुंचाते। और इतने सख्त अल्फाज क्यों कहे हैं अल्लाह ने कि लानत है उन पर? क्यों? क्योंकि ये किताब एक ट्रेजर की तरह है, एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमें मिली है, जिसे अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को दिया है, और एक फर्ज की तरह दिया है कि अब तुम्हें ये इसे आगे पहुंचाना है और लोगों तक पहुंचाना है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसके ऊपर बैठे हैं, उसको अपने खुद भी उसका फायदा नहीं उठाते, खुद भी नहीं सीखते और आगे भी नहीं पहुंचाते। और क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हम तो इस इल्म के इंतजार में थे, हम तो भूखे थे, इसकी तलाश में थे, हमें तो किसी ने नहीं बताया। और ऐसे लोग भी लानत करेंगे ऐसे लोगों पर जिनके पास ये इल्म है, या जिन्होंने इसको छुपाया, आगे नहीं पहुंचाया, या मुसलमानों पर जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा, ना समझा, ना आगे पहुंचाया। तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे लानत करने वालों से। अल्लाह अपनी लानत से हमें बचा कर रखे, महफूज रखे, हमारी हिफाजत करे और हमसे ये लानत उठा ले। या अल्लाह तू हम पे रहम कर, हमसे दरगुजर कर, तू हमें अपनी नाराजगी से बचा ले, तू हमें अपनी पनाह में ले ले। और अब इस आयत में मेरे रब की रहमत देखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ताबू, तौबा की। ताबा यतूबू से है, ता वाव बा इसका रूट है, रिपेंट करना, तौबा करना, लौट आना, पलट के आ जाना, माफी मांग लेना। व अस्लहू, और इस्लाह करी। स्वाद लाम हा इसका रूट है, टू रिफॉर्म, जो गलती की थी उसको ठीक कर लिया। वबय्यनू, और बयान कर दिया, वाज़ेह कर दिया, बता दिया, क्लियर कर दिया। फ़उलाइका, तो यही लोग हैं, अतूबु, मैं मेहरबान होता हूँ, अलैहिम, उस पर। ऐसे लोगों पर अल्लाह मेहरबान होता है। व अना, और मैं बहुत, अत्तव्वाबुर रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला हूँ, बहुत रहम करने वाला हूँ। तो आप देखें कि जो मुसीबतें हम पर आ रही हैं, एज एन इंडिविजुअल हम अकेले हैं वैसे, या फिर एज एन उम्मा पूरी नेशन के हिसाब से, अब देखें उम्मत मुस्लिमा पर जो आज मुसीबतें आ रही है, हो सकता है कि वो अल्लाह की लानत हो हम पर। तो अब ये ज़रूरत है कि हम तौबा करें, और तौबा का मतलब है कि अपनी गलती का एतराफ़ करें, पहले तो उसे माने कि हाँ, हमसे गलती हुई, और फिर उसकी इस्लाह करें, यानी उससे उससे बचें, उससे उसे छोड़ दें और अब उसको ठीक करें। अब जो सही काम है उसे करें। तो अब हमें करना क्या होगा? अब हमें तौबा करनी होगी। अब हमारी गलती का एतराफ़ करना होगा। तौबा की सबसे पहली शर्त है कि अपनी गलती को मानें। हम इस बात को मानें कि हाँ, हमसे गलती हुई है, और फिर इस्लाह करनी होगी, यानी ठीक करना होगा।
जो गलती हुई है उसको ठीक करने के लिए हमें पढ़ना होगा, कुरान से जुड़ना होगा, कुरान को समझने की कोशिश करनी होगी, थोड़ा या ज़्यादा। दिन में 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, जिसके पास जितना वक़्त है, और नहीं है वक़्त तो निकालना होगा थोड़ा-सा वक़्त कुरान के लिए। और जब हम कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें अपनी गलतियाँ पता चलेगी। जो गलतियाँ हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो गुनाह के काम हम कर रहे हैं, उन्हें छोड़ना होगा, उसकी भी इस्तिलाह करनी होगी, उसको भी ठीक करना होगा। और फिर हमारा काम होगा वबय्यनू, उसे आगे बयान करना होगा, लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाना होगा। थोड़ा या ज़्यादा, हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी है। किसी भी तरीके से, अमल के ज़रिए या बोल के या बता के या किसी और ज़रिए की तरफ लोगों को लाकर, इस कुरान की तरफ लोगों को लाना होगा, इस कुरान से जोड़ना होगा और सच्ची बात उन तक पहुँचानी होगी। तो हम में से हर एक को चाहिए कि कुरान को आगे पहुँचाए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, एक सूरा नहीं तो सिर्फ़ एक आयत। लोगों तक नहीं पहुँचा सकते तो कम से कम अपने बच्चों तक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़े मजमे में, सबसे बड़ी गैदरिंग में ये फरमाया था कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से लोगों तक बात पहुँचा दो, चाहे सिर्फ़ एक आयत हो वो। और उस मजमे में वहाँ पर उस वक़्त ऐसे लोग भी थे जो उसी वक़्त, उसी दिन इस्लाम कबूल किया था जिन्होंने। और कुछ ऐसे भी थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शुरू से थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सहाबी जो पहले दिन से उनके साथ थे, वो भी उस मजमे में मौजूद थे। और कुछ ऐसे भी थे जो नॉन अरब्स थे। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप स्कॉलर हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं दीन का, अगर आप कुरान को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तभी आपको ये बात आगे पहुँचानी है। जितना आपके अंदर सलाहियत है, जितना आप जानते हैं, जो इल्म आपके पास है, लेकिन ये बात याद रखें कि सही बात आगे पहुँचानी है। हम में से कुछ लोगों का मानना ये है कि कुरान सिर्फ़ वो पढ़ा सकता है जिसके पास डिग्री हो, जिसके पास इजाज़ात हों, जो इतना और इतना इल्म रखता हो और जिसको ये सब कुछ आता हो, तजवीद आती हो, ग्रामर आती हो, हदीस का इल्म हो और न जाने क्या-क्या पता हो, तभी वो आगे इस कुरान की पैगाम को पहुँचा सकता है। ये तो उसी तरह की बात हुई जैसे कि यहूद के उलमा करा करते थे, कि कुरान सिर्फ़ उनका हक है, कुरान पर सिर्फ़ उनका हक है जिसके पास इतना और इतना इल्म हो और जिसके पास ये इजाज़त और वो इजाज़त हो। देखें, कुरान के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से लोगों तक पहुँचा दो, चाहे वो सिर्फ़ एक आयत हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास इजाज़ात हो और तभी आप ये बात आगे पहुँचाओगे, आप उलमा दर्जे के लोग हो तभी आप आगे बात को पहुँचाओगे। टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, जो आप कर सकते हैं उतना करें, जैसा आप कर सकते हैं, जो बेहतरीन आप दे सकते हैं इस डायरेक्शन में, वो आप दें और आगे पहुँचाएँ इस पैगाम को। फ़उलाइका, तो यही लोग हैं, अतूबु अलैहिम, मैं मेहरबान होता हूँ उन पर, व अनत तव्वाबुर रहीम, और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला हूँ। इब्न कसीर के मुताबिक इस आयत में अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोले हैं उन लोगों पर जो पहले हक को छुपाते रहे, लेकिन फिर तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर लें और फिर सच को लोगों तक वाज़े कर दें, सच को बयान कर। इस आयत में अल्लाह की गफूरुर रहीम सिफत का इजहार हुआ है। अगर बंदा खुलूस के साथ तौबा कर ले और अपने अमल को सुधार ले, तो ना सिर्फ उसके गुनाह माफ होते हैं बल्कि अल्लाह उस पर मेहरबान हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.